So, hello everyone, this is Literature Lamb, and welcome back to my channel again. And those who are new to my channel, I make videos on English language and literature. And in today's video, I'll be telling you top 10 Indian women authors to read in English literature for NTA NET and PhD entrance. This is a very important topic according to NTA NET or PhD entrance because Indian women authors who wrote in English is a very important topic, and it's a huge part of NET exam and PhD as well. So without any delay, let's get into the video. And yes, let's start from the very first writer. Today I'll be telling 10 writers, top 10. You can read others as well, but these are very important according to the NET entrance and PhD entrance. So yes, let's start. So here we have the first writer that you should definitely have to read when you are preparing for NET or PhD entrance. So the writer is Anita Desai. She is very important literary figure of Indian English literature because she has all the great works in her account, and you should read her works because it's very important. Here I have also listed some of the important works from every writer. So let's also I'm just going to tell the important works. Further, you can read by your own by searching them on Google or by Wikipedia or any other thing. But in today's video, I'll be telling you the writers and their works only. Okay, the first writer is Anita Desai. You should read about her and her works. Let's see the notable works of her. The notable works are Clear Light of the Day, that you should read if you are preparing for UGC NET and PhD entrance. Clear Light of the Day, The Peacock Garden, Games at Twilight and Other Stories. Fire and the Mountain, very important work. Where Shall We Go This Summer, also important one. Voices in the City, and Cry the Peacock. Cry the Peacock is a very nice work, and all these are nice work, but you have to be very well versed with all the characters and the storyline of the work. So let's get another writer. So here we have another one. The second one is also very important, Arundhati Roy. She's a very great literary figure of India. She's actually considered to be an activist because she's always वो हमेशा एक्टिव रहती हैं सोशल वेज में. इनको अब सोशल एक्टिविस्ट की तरह ज़्यादा देखा जाता है. बुक्स इनकी फेमस हैं, बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं. एंड हर मोस्ट फेमस एंड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड जो वर्क है इनका वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, very important one, and others as well. The Ministry of Utmost Happiness is also very important. Things That Cannot Be Said is also important. So you should at least have some knowledge of Arundhati Roy and her works. So yes, Arundhati Roy is also very important. So let's see the another one. So here we have another writer, Manju Kapoor. Manju Kapoor is very important. You have to अगर आप MA के स्टूडेंट होंगे किसी यूनिवर्सिटी के, नॉर्थ यूनिवर्सिटीज़ के या इधर साउथ की यूनिवर्सिटीज़ के भी, तो भी आपने ज़रूर मंजू कपूर का वर्क पढ़ा होगा, कोई ना कोई. मैंने भी पढ़ा था. तो सारे इनके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सबसे बड़ी बात है, फीमेल राइटर्स का होना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिटरेचर में, क्योंकि अगर हम खाली मेल राइटर्स की बुक है तो मेल राइटर्स में हम क्या करते हैं, खाली मेल परसेप्शंस के बारे में ही जानते हैं. लेकिन जब फीमेल वर्क होता है उसमें हम फीमेल की जो एग्नी है, उनकी जो सफरिंग्स हैं या उनकी जो हैप्पीनेस है उसके बारे में हम जानते हैं. तो बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी. सो yes, Manju Kapoor is also important, and her notable works these are her notable works, and it's a very nice work. She's supposed to be, I think, a professor in Miranda House in Delhi University. So yes, the famous works are
Difficult Daughters, very important one. Married Woman, The Immigrant, Custody, Shaping the World, Women Writers on Themselves. So yes, these are her important works. So make sure you read at least the storylines of these. So I'll be making another video on the main Indian writers of English literature as well. But फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट कि मैं पहले वीमेन का बनाती हूँ, फिर मैं मेल का बनाऊँगी, बिकॉज इंडियन जो इंग्लिश लिटरेचर है वो भी इम्पॉर्टेंट है और वो उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. हमारा जो 4th फीमेल ऑथर है हमारी इंडिया की, वो है हमारी कमला दास. सो कमला दास का नाम सुना होगा ज़रूर जिन लोगों ने भी लिटरेचर में पढ़ा है, कुछ जिन्होंने MA किया है. इवन स्कूल टाइम से ही आनी शुरू हो जाती हैं इनकी सारे वर्क्स. तो यस, यू शुड definitely read about the Kamala Das and her works. So let's see the important works from her. A Doll for the Child Prostitute is important. The Old Playhouse, other poem. Padmavati, The Heralder, My Story, Alphabet of Love, The Descendants. So these all are important. Make sure you at least know the basic plot and background of the work. Now let's see the next female writer, Indian female writer, Kamala Markanday. Kamala Das and Kamala Markanday both are important. And Kamala Markanday के तो सारे वर्क ऐसे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें डेफिनेटली रेगुलरली क्वेश्चंस जो है हमारे आते रहते हैं, MCQs, हमारे नेट में हो या फिर PhD एग्जाम्स में हो. तो इनके नोटेबल वर्क्स ध्यान से हम पढ़ेंगे. हम ये इतना करना चाहिए हमें, मैं अगर एक राय दूं कि जब भी इनके वर्क्स पढ़ रहे हो, वर्क जो है उसकी एक स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए, उसका जो बेसिक है वो पता होना चाहिए कि उसके बैकग्राउंड क्या है वर्क का. तो इनका इम्पॉर्टेंट है नेक्टर इन द सीव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्टर इन द सीव इन्होंने एक इंग्लिश राइटर है, उनके वर्क से इन्होंने इसका टाइटल लिया है. सम इनर फ्यूरी, ये मैंने इनके ईयर भी लिख दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम इनके. पोजेशन 1963, हैंडफुल ऑफ राइस, द कोफर डैम्स, नोवेयर, टू वर्जिन्स, द गोल्डन हनीकॉम. So these all are her important works. Make sure you know the story, the basic background of the poetry, every poetry and work she had written. So yes, let's move towards the next one. So yes, the next is Jhumpa Lahiri. Jhumpa Lahiri जो है एक्चुअली ये सेकेंड जनरेशन है इमिग्रेंट जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स थे. ये वहीं पे बॉर्न है, अमेरिका में, अमेरिकन बॉर्न है. एंड पर ये इम्पॉर्टेंट है और ये इंडियन डिसेंडेंट है, तो हमें ऑब्वियसली ये इंडियन में ही आती हैं, तो इनकी भी हमें पढ़ने हैं. इनके नोटेबल वर्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सारे. एंड कुछ मैं बता देती हूँ, बहुत इन्होंने प्राइज़ जीते हैं, चाहे हमारा बुकर प्राइज़ हो या पुलिट्ज़र प्राइज़ हो. सो पुलिट्ज़र प्राइज़ भी इन्होंने जीता है इसके लिए, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़. तो नोटेबल वर्क्स हैं इनके. द नेम सेक, द पीछे आ गया है, ये द नेम सेक है ये. द लोलैंड, डर्मी ट्रोवो, अनअकस्टम्ड अर्थ, इन अदर वर्ड्स, एंड इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़. इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ को बहुत प्रेज़ मिली थी इनकी. तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट राइटर देखते हैं अपना. नेक्स्ट इज़, हेयर वी हैव नेक्स्ट शशि देशपांडे. शशि देशपांडे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने अपने MA में इनका वर्क पढ़ा है और इन्होंने विमेन पर्सपेक्टिव से अपने जो वर्क लिखे हैं, क्योंकि एक इंसान अपने पर्सपेक्टिव से ही वर्क लिख सकता है. मैन लिख सकते हैं, मैं फेमिनिस्ट होते हैं जो, लेकिन असली जो औरतों की प्लाइट है या फीमेल जो एग्नी है, कुछ भी है, वो एक फ़ीमेल लिखती है तो वो अलग तरीके से लिखती है. तो यस, तो शशि देशपांडे के वर्क हैं. दैट लॉन्ग साइलेंस उनका बहुत फेमस वर्क है और मैंने भी पढ़ा है ये. द डार्क होल्ड्स नो टेरर, वेरी नाइस. इफ़ आई डाई टुडे, कम अप, बी डेड, रूट्स एंड शेडो. So all these are important. And
Very nice. Let's see the next writer. ये कुछ और भी आ रहे हैं, इनको भी देख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका. आई एम जस्ट टेलिंग यू द आउटलाइन. तो आप जाइए, इन राइटर्स को देखिए, इनके बारे में डिटेल बनाइए, इनकी लाइफ स्टोरीज निकालिए, इनके वर्क्स के बारे में पढ़िए, एंड दैट्स हाउ यू प्रिपेयर फॉर एनी एग्ज़ाम ऑफ एंट्रेंस लाइक PhD or any net exam, any exam like net and PhD. So Ruth Broward Shawwal, very important writer. इनका नाम ज़रूर उन्होंने सुना होगा जो लिटरेचर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, और वर्क्स इनके पता होने चाहिए हमें. तो एस्मंड इन इंडिया, द हाउस होल्ड, बैकवर्ड प्लेस, हीट एंड डस्ट, 3 continents. तो यू शुड नो अबाउट हर एंड हर वर्क्स. Remember her name and just go through her works. Now let's see the next writer. So here we have Bharti Mukherjee. Bharti Mukherjee, very nice female writer, and I remember I was in MA when I first read her work. That is Jasmine, and it's a very nice work. Jasmine is a very nice storyline, and the the feelings of a female was very nicely written by Bharti Mukherjee. तो ये इनके important work हैं. Tiger's Daughter, Wife, Holder of the World, Leave It to Me, Desirable Daughters. सो मेक श्योर आप ज़रूर इसकी एटलीस्ट आउटलाइन पढ़ लें, प्लॉट पढ़ लें और स्टोरीज़ पढ़ लें सभी के. अब आते हैं अपने लास्ट राइटर के ऊपर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये क्रिटिसिज्म में इनका बहुत नाम है. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन फीमेल राइटर क्रिटिसिज्म में इतने नहीं हैं, एंड शी इज़ द वन जिन्होंने क्रिटिसिज्म में पार्ट लिया है. एंड गायत्री चक्रवर्ती, स्पाई वर्क, मैंने अपने MA में भी पढ़ा है इनका क्रिटिसिज्म, एंड उसके बाद भी पढ़ा है. तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे वर्क्स इनके हैं सारे. और सबसे ज़्यादा फेमस जो हुई थी, ये हुई थी अपने ऑफ ग्रामेटोलॉजी की वजह से. इन्होंने जो ट्रांसलेट किया था ये वर्क, उससे ये बहुत इन्होंने फेम पाया था. एंड वेरी नाइसली शी ट्रांसलेटेड एंड प्रेजेंटेड हर व्यूज़. तो और दूसरा इनका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने सबल्टन स्टडीज़ के बारे में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है. एंड येस, हियर आर सम नोटेबल वर्क्स बाय हर. माई सेल्फ, मस्ट आई रीमेक, लाइफ एंड पोइट्री ऑफ WB Yeats, इम्पॉर्टेंट वन. देन ऑफ ग्रामेटोलॉजी, selected subaltern studies in other world, essays in culture, politics, critique of post-colonialism towards a history of the vanishing present, and the death of a discipline. So चक्रवर्ती स्पाई वर्क के बारे में आप मेक श्योर करें कि ज़रूर पढ़ के जाएं इनके जो वर्क हैं उसके बारे में, और इनके बारे में भी थोड़ा बहुत इनकी पर्सनल डिटेल्स एंड इनके वर्क्स में क्या इन्होंने प्रेजेंट किया है. सो येस, वेरी इंपॉर्टेंट वन, चक्रवर्ती स्पाई वर्क, गायत्री चक्रवर्ती स्पाई वर्क. So yes, so this is all about today's video. Thank you for watching my video, and if you like the video, give it a thumbs up. And yes, thank you for watching.